Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. First of all, thank you very much for such an overwhelming response. We have asked for 400 likes and we have uh you guys have given us more than what we had expected from you. So a big thank you for all of you from me and Aditya. So here we are starting with support and resistance video. So before starting, I would want you to grab a pen and paper just to make quick notes. So without any further ado, let's get started. So let's understand what support and resistance is in a very layman language. I'll quickly draw a line. We all know that prices move in a wave pattern, right? It goes up and it comes down, it goes up and it comes down. We have to find touch points wherein we have to find that zone wherein the prices bounces the moment it touches. Just for an explanation, let's say if you are using a tennis ball. The moment you drop a tennis ball, the immediate reaction is it bounces back. Why? Because it touches the floor and it immediately rises up. So understand support as a floor and resistance as a ceiling. So remember, support is a floor and resistance is a ceiling. To simply explain again what happens the moment the prices come down and touches the floor, prices immediately bounces back. The moment it touches the ceiling, which is also called as a resistance, it immediately drops down. Support in simple language is a floor because the prices bounces from that zone, and resistance is basically a ceiling because what happens the moment you throw a ball, the moment it touches the ceiling, it immediately drops off. So just understand here the tennis ball reaction on the floor is it bounces back up, and the moment you throw something anything upside, the moment it touches a surface on the upper side, which we call as a ceiling, it immediately drops off. So support and resistance are basically floor and ceiling. Now let's understand in detail on the charts. What I'll do is I'll quickly take you to today's chart, right? What has happened in yesterday's video of daily analysis, Aditya has also explained that there was this rectangle that was being uh, going on, right? I'll just draw a normal rectangle, a regular rectangle. Yeah. So just see here how the prices have reacted. The moment the prices come here, it immediately reverses back. The moment the prices come here, it immediately reverses down. Again, goes up, comes down, goes up, and then comes down. And we will talk about all these zones again in detail. So, isn't this more of a tennis ball reaction on the floor? And this more of a ceiling? So this is what a support and a resistance was. So we were saying, if you guys remember yesterday, I had tweeted R ya par move would come only agar 45,500 is taken out on the downside or 46,050 is taken out on the upside. You guys actually see this. There was not a single 15-minute candle which closed above this particular zone, which means, and here can you see a very huge big breakdown we have seen here. So this is how the support and resistances work. So even if you don't know anything, any candlestick pattern or any chart pattern, still you can enter trading and make money out of trading just by using support and resistances. Now let's understand in detail. So now let's understand what will happen. All this while this particular zone was acting as a support, right? And remember, support and resistance are always a zone and never a line. Hence you would have seen what I usually write S1 as 45,500 and 45,550. So it's always a zone and never a line. Why I use line in my drawings for plotting support and resistance. What we have seen, this was acting as a support. This broke down, and can you see this? It almost took resistance near to this particular zone. Why? Because now this erstwhile support is taken out. It's been broken, and now this support will act as a resistance. The terminology that we use is erstwhile support has now become a resistance. So for our Hindi audience, जो ये support है, इतने बार इसने support लिया और finally ये breakdown दे दिया इसने, उसके बाद जब भी ये वापस उस तरफ जाने लगेगा, ये resistance होगा because ये fresh resistance बन गया. तो ये जो पहले support हुआ करती थी, उसको ब्रेक करके अब वो रेजिस्टेंस बन गया. और कब तक बने रहेगा ये रेजिस्टेंस? जब तक इस लेवल को ब्रेक आउट नहीं होता है. ठीक है, हम और डिटेल में समझते हैं. अब आई एम सेइंग दैट दिस जोन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड.
बट हम देखते हैं पहले ऐसा हुआ था कि नहीं, राइट? सो जस्ट लेट्स गो एंड बैक टेस्ट दिस पर्टिकुलर thing whether it works or not. Now let's understand how to draw a support and resistance. What I said, first you have to basically check the level जहां से prices ने bounce किया है ऊपर, यहाँ से bounce किया है, 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 और सप्लाई कहाँ से आया है? यहाँ से सप्लाई आया है, 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 और ये पूरी जगह से सप्लाई आया है. So now can we, with these kind of plots, can we simply draw a rectangle? Let's see that. And for understanding purpose, what I usually do, I mark all my supports in blue or green and all my resistances in orange or red. ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस थी. अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस. कैन यू सी दिस? ये ब्रेकआउट हुआ है. अब ब्रेकआउट होने के बाद हम क्या बोलते हैं? अब ये ब्रेकआउट हो गया तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट. हम क्या बोल रहे थे? erstwhile resistance has now turned into support, right? Because all this while it took resistance here, it took resistance here, it almost took resistance here, then gave a final breakout, और उसके बाद यही zone now is acting as a support, right? अब इसके बाद एक और चीज देखिएगा आप, ये पर्टिकुलर जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, छोटी सी, राइट? ये लेवल पे ब्रेकआउट होती है. अब ये जोन जो है, ये पर्टिकुलर जोन जो है, नाउ दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, राइट? बिकॉज हमारा यही थियरी है ना, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद फर्स्ट टाइम तो वो सपोर्ट एक्ट करती है, उसके बाद एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इट टेक्स सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, देन इट मे और मे नॉट ब्रेक. तो ये देखिएगा आप, took resistance, breakout, took support and then made a fresh high. तो अब समझते हैं हम कि ये how, like as a trader, how you can make use of it. By the way, यहाँ पर भी एक है, let's understand this also. Can you see this? Now let's just plot a rectangle. Now what kind of an action here it is? It's more of a buyer's action, like it is providing a support. So hence we will use a blue rectangle. What kind of action it is showing here? It is showing an action of ceiling. So hence we will use a rectangle of red. How you can use this particular information, right, for trading? Let's understand that. Now you know that the market is trapped in a range wherein the supports and the resistance have been tried several times, have been tested several times. Now you have been waiting to take a trade. So let's say if you are a breakout trader, the moment this particular level gets taken out, in which in this case it has taken out on 23rd of January at 11:30, the moment this particular zone is taken out, can't you just start selling calls if you're an option seller? If you're a future trader, can't you short the future? If you're an option buyer, can't you buy an put option? So this is how you can take trades, okay? Now let's say here, this is where you are basically you are waiting, and here you get some sort of a breakout. Here you can attempt to go long. Here again you can attempt to go long because there is a clear breakout. Now I'll just give you one advanced point. ये बहुत ही important है, ये थोड़ा सा advanced है, तो आप जरा गौर से सुनिएगा इस चीज को. So please focus here. Now what has happened? Just see this. ये buyer का घर है, ठीक है? This is the house of the buyers because this is a very strong floor. Now what buyer has smartly done, it has safeguarded his floor, it has safeguarded his house here, and these buyers have safely shifted their house upwards. तो ये तो उन्होंने safeguard कर दिया और ऊपर भी सरका दिया, एक नया घर बना दिया, which means on the price action perspective ये क्या हो गया है? It is more of a higher lows, right? ये एक low है और ये higher low है. Higher low also basically indicates buyers का strength, right? तो लेट्स से आपको अभी पता है कि बायर्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होने आ गया है तो यहाँ पर आप अच्छे से बेट ले सकते हो. व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि बायर्स स्ट्रेंथ में है, क्योंकि बायर्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टू take trades. Now
हम थोड़ा और भी चार्ट्स देखते हैं, राइट, टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज हाउ इट वर्क्स. नाउ लेट्स look at this particular chart. Prices reversed from here, fell from here, fell from here, okay, and then took support from here, support from here. Now let's understand. Now, isn't this acting as a resistance or a ceiling? And now just look at this. It gave a fake breakout, came down inside the range, and then gave a good breakout. Can you see this? 27 December 3 p.m. Now look at this one. यूजुअली जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम वो सपोर्ट लेता है. आगे ले नहीं ले पता नहीं, बट एटलीस्ट एक बार तो वो फर्स्ट टाइम जब भी आएगा वो सपोर्ट लेगा. रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट एंड रेजिस्टेंस, क्लियर ब्रेकआउट, देन सपोर्ट. उसके बाद ये इसने वापस ब्रेक कर दिया इस चीज को. अंडरस्टैंडिंग हमको ये कैसे इसमें ट्रेड कैसे करना है, ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ टू ट्रेड दिस पर्टिकुलर थिंग. लेट्स से दिस ये आया ही नहीं था, ठीक है, हम इस तरफ चलते हैं, ठीक है. अभी मान के चलते हैं कि अब हमारे पास ये है, तो फिर अभी ये भी तो सपोर्ट है, ये भी हमारे लिए सपोर्ट है, राइट. तो मान के चलते हैं अभी हमारे पास ये रेंज में है, एंड बेसिकली वी आर हियर ट्रेडिंग. तो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली, अगर हमारे पास हम एक बेसिकली हम स्ट्रैंगल्स के साथ प्ले कर रहे हैं, जहाँ पर हम 46, हमको पता है कि 47 600 500 पे सपोर्ट है और 48 200 के आसपास रेजिस्टेंस है. तो हम स्ट्रैंगल में, अगर लेट्स से हम स्ट्रैंगल प्ले कर रहे हैं, और फॉर ऑप्शन बायर्स बेसिकली ये जोन नो ट्रेडिंग जोन है, राइट. तो बेसिकली मूवमेंट कहीं पर भी नहीं. तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस ये देखिएगा, यहाँ पर प्राइसेस ने सपोर्ट लिया और आपको देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है. कैन यू सी दिस कैंडल? अब ये जैसे ही कैंडल आती है 230 की, जहां पर ये क्लियरली ब्रेक कर रही है, अब ये जब ब्रेक कर रही है, आपको आपको समझेगा कि ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है ये सपोर्ट को. तो इसका मतलब क्लियर है हमको, अगर हमारे पास वो पुट जो सेल पुट की जो लेग है हमारे पास सेल की हुई स्ट्रैंगल में, उसको हमको एग्जिट करना है यहाँ पर और कॉल्स को इमीडिएटली रोल डाउन करना है. वाई? बिकॉज देर इज अ ब्रेक डाउन. तो ये देखिए, अगर आपने नहीं कट किया होता तो ये कितना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही, ये आई गेस दिस वन इज एन एक्सपायरी बिकॉज वेनसडे है. देखिएगा कितना ब्रूटल सेल ऑफ आया है इसमें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करता है, और यहाँ पर देखिएगा ये सपोर्ट को उसने कितना बार टेस्ट भी किया हुआ है, तो इसका मतलब ये वीक भी हो चुका था, है ना. तो इसके लिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. अगर आपके पास ट्रायंगल है तो यू शुड नो कहाँ पर उसको पुट लेग को कहाँ पर इमीडिएटली कट करना है. तो अगर आपने इधर इमीडिएटली उसको कट कर दिया, ऑल यू कैन डू इज आप कैसे कॉल्स को रोल डाउन कर सकते हो. लेट्स से आपके कॉल्स यहाँ पर थे, ये वाले कॉल्स आपने बेचे थे और ये वाले कोई पुट्स बेचे थे. जैसे ही ब्रेक डाउन आता है, आपने ये वाले पुट के लेग को एग्जिट कर दिया है, आप क्या करोगे? कॉल्स को रोल डाउन करेंगे, इधर आओगे, इधर आओगे, इधर आ जाओगे, ठीक है. और ये जैसे ये लो भी ब्रेक हो जाता है, तब आप इधर भी आ सकते हो, क्योंकि नाउ यू नो दिस सपोर्ट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. दिस इज हाउ यू बेसिकली प्ले अ स्ट्रैंगल, मतलब यूजिंग दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. और forget this triangle player. Let's say you're an option buyer, right? आपको क्या चाहिए रहता है? आपको मोमेंटम चाहिए रहता है. मोमेंटम कब आएगा? जब कोई एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो कि बहुत बार टेस्टेड है उसको ब्रेक करता है, तब शार्प मोमेंटम आता है. तो यहाँ पर देखिएगा ये इतना बार टेस्ट किया हुआ है, अब ये ब्रेक करता है. अगर आपने यहाँ पर पुट बाय किया हो, देन कांट यू राइट द एंटायर ट्रेंड. ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो 230 को जो ब्रेकडाउन आई है, उसके बाद आप ये पूरा डाउन मूव कैप्चर कर सकते हो, राइट. दिस इज हाउ एन ऑप्शन बायर कैन प्ले दिस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड. व्हाट वी कैन डू नाउ is we can take another example, and this time I'm going to hide the right side of it, because I don't want us to basically peep, and we would just test our support resistance techniques. So again, we have to see, this is where the prices have bounced. This is where the prices are taking resistances now. I'll draw both of it. This was an erstwhile support, and this has now turned into a resistance. But I can clearly see a resistance here. Why? Because prices have been reversing from this particular zone, because this one is acting as a ceiling. Now, in the earlier example, we saw that buyers were shifting their houses, right, on the upside. Now, similarly, can't you see the sellers here
sellers who were present here, they shifted their house downwards, which means the prices are making lower highs. So here we can, from that action also, we can clearly see that sellers are dominating right now. So remember, if the buyers are shifting their bases on the upside, it basically talks about the dominance of the buyers. Similarly, if the sellers are trying to push their houses downside, it basically talks about the dominance of the sellers. हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि बायर्स की जो घर था वो ऊपर शिफ्ट हो रहा था, उन्होंने पहले अपना घर को सेफगार्ड किया और ऊपर शिफ्टिंग किया. सिमिलरली सेलर्स ने ये वाला तो अपना घर सेफगार्ड कर दिया और शिफ्ट कर दिया नीचे. इसका मतलब प्राइजेस कहीं ना कहीं लोअर हाइस फॉर्मेशन में है, जिसका मतलब है सेलर्स थोड़ी सी हावी है मार्केट में. तो इस वजह से भी आप बोल सकते थोड़ा सा सेलर्स, ये सेल ऑन राइस वाली मार्केट भी है. अब देखते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हुआ कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर. अब हमको वेट करना है यहाँ पर ब्रेकआउट आता है कि नहीं. अब सिमिलरली जैसे सेलर्स ने यहाँ पर शिफ्ट किया था, क्या हुआ था, पहले तो बायर्स ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बेस बना दिया था. बट यूजुअली मैं आपको बताती हूँ, कोई अच्छा सपोर्ट तभी होता है जहां पर उसने एटलीस्ट 2 टाइम्स तो उसने सपोर्ट मतलब लिया होता है. यहाँ पर कैसे एक ही बार है, अच्छी मतलब इट्स, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नॉट अ सपोर्ट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज सपोर्ट, बट एटलीस्ट ट्वाइस वगैरह अगर है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है वो. अगर आप यहाँ पर देखोगे कि बेसिस है जो बायर्स की वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुई, फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गई, इसका मतलब है बायर्स का भी जो बेस है वो ऊपर की ऊपर तरफ जा रहा है. इसका मतलब क्या, सेलर्स अब वीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं. सेलर्स ने अपना जो घर है वो तो बना ही रखा है, जस्ट दैट बायर्स का ये जो बड़ी रेंज थी ये थोड़ी सी अब कम हो गई है, डिस्टेंस जो है वो कम हो गई. तो हम देखते हैं अब किस तरफ निकलने का प्लान है, राइट. तो अब हम वेट करेंगे और देखेंगे कि प्राइसेस किस तरफ मूव कर रहे हैं. अब हमें दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर जोन है, इसके ऊपर प्राइसेस ऑलमोस्ट सस्टेन करने लग गई है. कैन यू सी दिस. इसका मतलब है ये अब जोन निकलने वाला, ये जो रेजिस्टेंस था ये वीक होके अब दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू सपोर्ट देन. व्हाई, बिकॉज प्राइसेस आर मूविंग ऑन द अपसाइड. हम इसको क्या टर्म करेंगे, इसको अब हम अर्स्ट वाइल रेजिस्टेंस हैज नाउ टर्न इनटू सपोर्ट. जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो सपोर्ट है, हम इस चीज को दर्शा रहे हैं यहाँ पर. And can you see this, how beautiful it has worked? See, resistance, 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 a breakout, then it is making this as a support. तो आपको इस पर्टिकुलर चीज को अपने ट्रेडिंग में यूटिलाइज करना है. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है. यहाँ पर अगर आप स्ट्रैंगल में फंसे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेग आपको कब काटना चाहिए. अब मैं एक और आपको कंसेप्ट बताती हूँ कि मैंने एक वीडियो में कहा था और मैंने बहुत सारे मेरे पोस्ट में भी कहा है कि you should rely on support and resistances rather than trend lines, because support and resistances are much more powerful than trend lines. तो उसका मतलब क्या था. अब पहले तो ये जानिएगा, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये 0 डिग्री पे बनाया जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस आती है. जो ट्रेंड लाइंस है वो 0 डिग्री पे नहीं बनती है, वो हमेशा एंगल में बनती है, जैसे कि 30 डिग्री 40 डिग्री ये वाली एंगल्स में बनती है, 20 डिग्रीज. तो जैसे कि ये एक ट्रेंड लाइन है, राइट, ये भी एक सपोर्ट ही है. मतलब जैसे अगर आपको दिखेगा बायर्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये भी एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ही है, बायर्स की सपोर्ट दर्शा ही रहा है. बट हमेशा ये जो ट्रेंड लाइंस है जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं 0 डिग्री वाले, वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि फॉल्स मतलब फॉल्स ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा एंड देन इट अगेन रिवर्सेस. बट इसमें यूजुअली ऐसा होता नहीं है, स्पेशली जो कि वो थोड़े से काफ़ी बार अगर टेस्टेड है, जैसे ये इस केस में ऑलरेडी 3 टाइम्स इट वॉज टेस्टेड एंड इट वॉज अ वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत टाइम से बना हुआ है और फिर उसने उसको ब्रेक किया है. ऐसे वाले जो रेजिस्टेंसेस है वो बहुत पावरफुल होते हैं जब भी वो ब्रेक करते हैं. तो अब चलते हैं, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कैसे प्लॉट करती हूँ और मेरा जो S1 S2 S3 है और R1 R2 R3 है वो मैं कैसे प्लॉट करती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट यूज़ एनी इंडिकेटर्स. बहुत लोगों को लगता है कि मैं पिवट पॉइंट से निकालती हूँ. आई हैव नेवर यूज्ड पिवट पॉइंट्स एंड मैंने एक बार देखा भी है, मुझे उसकी एक्यूरेसी नहीं पसंद है, तो हम मैनुअली ड्रॉ करते हैं जो भी करते हैं. तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू और मैं क्यों लाइंस यूज़ करती हूँ, जबकि मैं कह रही हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हमेशा जोन होती है, फिर भी मैं लाइन क्यों यूज़ करती हूँ मैं आपको वो भी बताऊंगी अब. तो पहले तो आप, आई वॉन्ट योर अटेंशन यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो जोन है यहाँ पर आप देखिएगा.
ये जो राइट साइड में है यहाँ पर जो नंबर्स है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी प्रिंट नहीं दिखेगा। प्रिंट नहीं दिखेगा मतलब देखिए ये यहाँ पर मैंने अभी अगर ये सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है, यहाँ पर कोई प्राइजेस दर्शा के आ नहीं रहे, सॉरी यहाँ पर कोई प्राइजेस हाईलाइट नहीं हो रहा है। बट नाउ जस्ट लुक एट दिस, कैन यू सी दिस, यहाँ पर ये इंप्रेशन आ जाती है कि ये 43। तो होती क्या है, मेरे को ये मेरे कन्वीनियंस के लिए आई डू इट दिस वे। what happens while I'm trading ना, the moment it comes here this I मतलब my mind gets alert, हाँ ये इसके पास आ रहा है, तो you have to react, ठीक है। तो ये this is the reason why I use a line, but if you have seen my charts, उसमें मेरे clearly मैंने लिखा रहता है यहाँ पर कि 43,250 to 43,300 ऐसे मैं ऐसे जोन मार्क करती हूँ हमेशा। तो फॉर दिस रीजन आई यूज अ लाइन इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगल। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वो जो लाइन्स है उसका मतलब क्या होता है। मैं ये निकाल रही हूँ जैसे मैं नॉर्मली ड्रॉ करती हूँ। देखिए अब ये तो मेरे को पता चला कि ये तो सपोर्ट है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, इसको इमीडिएट सपोर्ट बोल दूंगी। अब मेरे को ऊपर में क्या दिख रहा है कि हाँ ये देखो, ये देखिए यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल इट वर्क्स। ये देखो पहले ये जो था ये सपोर्ट हुआ करता था, इधर इसने ब्रेकडाउन दिया, अब क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा। कब तक, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है। ब्रेकआउट दे दिया और फिर ये यहाँ पर वापस इसने सपोर्ट बना लिया। तो दिस इज हाउ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस वर्क्स। ये देखिए आई विल ड्रॉ इट अगेन हियर। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना, ये पहले सपोर्ट, ये सपोर्ट था, ये वाला जोन सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अ बिग ब्रेकडाउन। सो इफ यू आर अ डायरेक्शनल प्लेयर यू कैन मेक यूज ऑफ इट। अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप अच्छे से ये पर्टिकुलर मूव को कैप्चर कर सकते हो। फिर जब ये आ रहा है, देखो फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर उसने दोबारा एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अब देखो ये वाला जोन वापस सपोर्ट बन गया। Isn't it so beautiful, मतलब how prices are moving? I find this fascinating. Support now turned into a resistance, now turned into a support again. तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली आप उसको प्लॉट करते हो। अब मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैं इसको लाइंस में कैसे ड्रॉ करती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये मेरा सपोर्ट है, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पर। अब तो ये मेरे लिए एक जोन हो जाएगा अराउंड 43,500। क्यों मैं यहाँ पर मैं इसके पास में क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो जोन है ना, ये 43,556 और ये यहाँ से बाउंस हुई है, तो मैं ये वाली जोन्स को मान के चलूंगी। आपको अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है तो आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने जैसे आपको कहा मुझे ये प्रिंट दिखना होता है, इसके लिए मुझे वो चाहिए होती है। और मान लीजिए अब मेरे पास मान लीजिए इतने ही चार्ट्स है, तो फिर ये फिर उसके बाद का क्या सपोर्ट्स है, तो फिर मैं ये जो स्विंग्स है ना इसी को सपोर्ट्स ले लूंगी। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मुझे टच पॉइंट्स मिल गए, राइट, 3 टच पॉइंट्स, तो ये इजी रहा मेरे लिए। अब यहाँ पर एज सच मेरे पास कोई बहुत बड़ा ऐसे बहुत ज्यादा टच पॉइंट्स वाले है नहीं। सो व्हाट आई एम यूजिंग ईच स्विंग एज माई सपोर्ट। यहाँ पर फिर भी अच्छे टच पॉइंट्स है 2, तो ईच स्विंग एज माई सपोर्ट, ये भी अच्छी है। और फिर देन दिस वन, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ करूंगी। ऑफ कोर्स आप कलर कोडिंग आपके हिसाब से करोगे। मैं हमेशा जैसे कि ब्लू और ग्रीन्स फैमिली आई यूज इट फॉर सपोर्ट एंड ऑरेंज एंड रेड यूजुअली फॉर रेजिस्टेंसेस। दैट्स हाउ आई मेक यूज ऑफ इट। अब देखिए ऑन द अपसाइड व्हाट आई डू, मतलब मान लीजिए इसको मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 44,060 के आसपास, क्योंकि एक बहुत बड़ा विक जाकर वहां से रिजेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ में मैं ये पूरा जोन मेरे लिए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ये पूरा का पूरा जोन, ये 44,400 से 44,500। दिस इज हाउ आई ड्रॉ बेसिकली। ये फिर ये होगा मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 R2, ये इमीडिएट सपोर्ट R2 R3 R4। इसको यूज कैसे करते हैं, लाइक मान लीजिएगा कि मार्केट यहाँ पर कोई एक रेंज में फंसी है, तो अगर रेंज में फंसी और लेट्स से आई हैव अ ट्रायंगल, सो आई विल नॉट, मतलब मुझे उसमें कुछ मतलब स्पाइक्स में फिर डरना नहीं है, अनलेस ये लेवल ब्रेक होता है या ये लेवल ब्रेक होता है। इसमें भी हम जैसे हम ज़्यादा और डेप्थ में जाएंगे तो वी विल टॉक अबाउट मेजर सपोर्ट्स एंड मेजर रेजिस्टेंस। जब वो ब्रेक होती है तभी हमको और भी थोड़ा सा कॉशियस रहना होता है, अगर आप स्ट्रैंगल्स में हो तो। मान लीजिएगा कि यहाँ पर मुझे पता है कि अभी अगर ये लो ब्रेक हो गया तो थोड़ा सा फॉल नीचे ज़्यादा आ सकता है, तो वॉट आई विल डू, आई इमीडिएटली कट ऑल माई पुट्स एंड आई स्टार्ट रोलिंग डाउन माई कॉल्स। वाई, बिकॉज ये लो कटने के बाद मुझे पता है कि स्ट्रेट अवे उसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर ही है, उससे पहले कोई उसको मतलब रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इफ 43,577 निकल जाता है तो मुझे पता है कि स्ट्रेट अवे वो 270 275 तक आने वाली है।
तो फिर वो पर्सपेक्टिव से भी आप प्ले कर सकते हो इस चीज़ को। तो बेसिकली लेट्स से आप लोग, बहुत लोग मेरे को पूछते हो कि टारगेट्स कैसे निकालते हो। अगर आपको टारगेट्स नहीं निकालना है, सिंपल रख लो आप लाइफ को। आप ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को नेक्स्ट टारगेट मान लो यहाँ पर लेट्स से ब्रेक हो जाता है अगर ये लेवल, आपका नेक्स्ट टारगेट ये है, ये भी ब्रेक हो जाता है, आपका नेक्स्ट टारगेट एक तो ये गैप फिलिंग वाला एरिया है और ये है उसके बाद। तो आप इस चीज मतलब दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली modify your targets. You don't have to like plot each and everything. If you are able to plot how the basic support and resistances, then that is more than enough. So I'm just hiding this and to make this chart cleaner. So अगर ऐसा आपको क्या करना है ना, you have a homework. All you have to do is you have to pick up charts हिस्टोरिकली, जो भी है आपको ड्रॉ करना है और जाके फिर उसको देखना है कि वो आगे कैसे पैन आउट किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस, ठीक है, मैंने ये कहा था ना ये S1 है और ये R1 है और फिर ये, तो अब देखते जाके अपन ने कैसे पैन आउट किया। कैन यू सी दिस? ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया एंड देन टुक इट ऑफ। कैन यू सी दिस? मतलब इट इज नॉट अ मैजिक, दिस इज हाउ इट वर्क्स, द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सी इट क्या हुआ, उसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर ऊपर, आई जस्ट जूम इट आउट, सी didn't it take a resistance and it came down? ये सपोर्ट पे है, वापस हैमर, फिर से ऊपर जा रहा है। अब के बार इसने ब्रेक किया तो कहाँ तक गया, ये देखिए, कैन यू सी दिस? आई ड्रू दिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, मतलब मैंने पूरा ये चार्टिंग जो प्लॉट किया है ये मैंने आपके सामने किया है और आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। आपको भी यही करना है, आपको पहले हिस्टोरिकली चार्ट्स में पहले राइट साइड का हाइड करके यू हैव टू ड्रॉ एंड देन यू हैव टू सी हाउ इट पैन्स आउट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज इन योर प्लॉटिंग ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये तो हो गई बात हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपको इसमें मतलब थोड़ा सा और आपके हिसाब से आपको और कोई इंडिकेटर्स के लिए, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल यूज इंडिकेटर्स, अगर आपको लगता है इंडिकेटर्स हेल्प करता है आपके हिसाब से, आई डोंट रेकमेंड एनी इंडिकेटर्स, बट अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आप उसके कॉन्फिडेंस के साथ भी आप आपके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर सकते हो। बट दिस इज हाउ आई ड्रॉ इट एंड सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ हाउ आई यूज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आपने ऐसा कॉन्टेंट कहीं और देखा नहीं होगा जो जिस वे से हमने इस पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखा है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपके लिए बहुत ही नया होगा और आपने कुछ इसमें से नया सीखा होगा। So please hit the like button. Please hit the like button. I know I'm going a bit out of my way and I'm asking for more likes from you guys and I'm pretty sure that you guys are going to make this happen. I would want to ask, मैं आपसे मांग रही हूँ 800 likes on this video so that we will come up with more such educational videos। और इस पे भी हम अगर आपके कमेंट्स लिखोगे नीचे, आपके और कोई क्वेरीज है इसके बारे में, तो वी आर गोइंग टू कम अप विद द पार्ट 2 जहाँ पर हम और एक्सटेंसिवली इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और आपके सारे क्वेरीज को भी हम रिवर्ट करेंगे, मतलब उसमें सारे क्वेरीज को भी हम कवर करेंगे Q&As। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड एंश्योर कि आप मेरा 800 वाला जो टारगेट है वो मुझे पार करवा रहे हो 800 लाइक्स के साथ। और 800 लाइक्स के साथ सिर्फ उतना ही नहीं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर मुझे 800 लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आ जाती है, हम एक और चीज़ करने वाले हैं आपके लिए। अगर आपको सच में कोई एक सीरियस लेवल पे ट्रेडर बनना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ विल यू कम टू नो कि आप क्या कर रहे हो। वो आपको पता चलेगा ओनली एंड ओनली बाय मेंटेनिंग अ जर्नल। अब बहुत लोग जर्नल मेंटेन करते हैं बट इट इज़ मोर ऑफ अ, जैसे हम स्कूल में रफ बुक यूज़ करते थे ना, वैसा काइंड ऑफ लोग अपना ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं। उससे आपको कुछ नहीं पता चलेगा हाउ टू मेक द जर्नल इन अ राइट वे। और उसको सिर्फ बनाना नहीं है, उसको बैठ के फिर एनालाइज भी करना है। वो तो हो गया रॉ डेटा, आपके बारे में रॉ डेटा है और आपको कैसे उसको बैठ के एनालाइज करना है। ये पूरी चीज़ पे Aditya will come up with a very amazing video and I would highly recommend you to watch because the kind of effort he has done, because we ourselves are using that kind of journal. So and it really helps. It has improved our trading over a period of time. I though would definitely not going to miss it because it's a really a good learning and I'm pretty sure that you guys are equally excited to watch that kind of a video as well. I hope you will finish the targets and hope you like this video. Do like, share and subscribe to our channel if you haven't done so far, and see you in the next educational video. Till then, bye bye and take care.